A very wonderful good morning to all my wonderful students of 12th grade. I hope, students, that you must have given your periodical tests nicely. And of course, it is good to see that most of the students has done the test nicely only. Okay. Yes, in the literature portion, the grammatical part has a little bit of, minus points, but that we will be correcting during the course of the year. Okay. Now, students, as your periodic tests are over, and I hope you all must be, feeling relaxed. But come back to your studies, students. For you, as you are, of course, the board class students, there is no time for relaxation, my dear students. Okay? Once the board exams are over, definitely at that time, for only few days, you can feel, yes, fine, we are relaxed. Otherwise, don't even try to think that, fine, I'm relaxed. No. Okay? And I would like to inform you that these periodical tests which you have given, the marks of these tests will be calculated for your internal assessment. Okay. So whenever the next periodic will be happening or will occur, take it very, very seriously. Okay, irrespective of any conditions, whether you are having online classes or offline classes, whether you are coming to school regularly or any other excuses in life. Okay, as I have always reminding you, my dear students, stay away from excuses. Okay, now students, let us begin a new chapter today. Okay, and this chapter is from your book Vistas. Okay, and I definitely hope that you all must be at least sitting with your practice notebooks for attending your English class. And of course, if you have nearby Vistas available just in front of you, grab it very quickly. Okay, grab it very quickly. If not possible today, no problem. In tomorrow's class, you can sit ready with your Vistas. Okay, my dear students. Now, let us see first, of course, the chapter is The Enemy. Okay, and it is written by Pearl S. Buck. Okay, Pearl S. Buck, she was one of the greatest laureates. Okay, she was an American poet. And of course, she has won a Nobel Prize in Literature also. So you can understand, okay, and of course her parents were missionaries, okay, you can understand, right? So being a child of missionaries, she most of the time spent her childhood, adulthood out of her country only, okay. Most of her life was being spent in China, basically. When you read her biography, okay, you will find these facts in that, okay. Now students, let us understand the chapter's title first. The Enemy. Of course, बड़ा simple सा title है. आप सोचेंगे the enemy. Enemy कौन होता है? शत्रु, दुश्मन, okay. But students, think again. Okay, think again. Who are we? Of course, definitely we are first human beings, okay. But nowadays, of course, as it is a modernized period, we have our greeds, we have our aims, our priorities. So we feel the other one who is not supporting us, or the other one who is not with us, is of course our enemy. Okay, that is what the modernized scenario, the thinking has started to become. Okay, but think again, students. Also, although this title, The Enemy, it is very, very apt. The reason is that the background of this is, of course, a war. Okay, the background of this story is war. Okay, and this is not a simple war, it was the World War where America versus Japan was there. Okay, means America was against Japan. Okay, is that clear? This story is of course based in Japan. Okay, is that clear? हमारी जो story है The Enemy, वो Japan के background पे based है, and it is written during the time of World War where America was against Japan. Okay, both the countries were against each other. Am I clear, dear students? Fantastic. Okay, now students, see, what happens when two countries are in war? What happened?
Okay, definitely the two countries, the armies of two countries, the soldiers of two countries, the navy personnel, okay, all these forces personnel, definitely they are at war with each other. But what about the civilians? What about the general public? What about them? Okay, of course, I need not tell, they also become enemies eventually, okay, due to this beautiful war. Okay, is that clear? Right, now open your textbooks, okay, and as I'll be reading your first paragraph of the book to you, okay, listen to it and then I'll be explaining it to you. Okay, let us begin. Okay, Dr. Sadao Hawkes. Okay, who is the main character? Okay, who is the main character? Of course, Dr. Sadao Hawkes. Okay, students, Dr. Sadao Hawkes is the main character of this chapter. Okay, now let us read further. Dr. Sadao Hawkes' house was built on a spot off the Japanese coast where, as a little boy, he had often played. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet, as he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts. His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan." Okay, am I clear, dear students? Right, now students, in the opening paragraph, the house of Sadao Hawkes is described. ठीक है, उनका जो घर है, of course it is built on a spot of the Japanese coast. ठीक है, कोस्ट क्या होता है? समुंदर, सी, ठीक है, तो सी शोर के पास ही हमारे सदाओ होकी का क्या था? घर था, ठीक है, इट वॉज अ लार्ज बिल्ट हाउस, स्टोन हाउस, ठीक है, उनका जो घर था दैट वॉज अ स्टोन हाउस, ठीक है, ध्यान रखेंगे. एंड फर्दर क्या बताया हुआ है? ऑफकोर्स इट वॉज सेट अपॉन द रॉक्स, ठीक है, आपको पता है सी शोर के किनारे, समुद्र के किनारे बहुत सारे पत्थर होते हैं अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के, तो उन पत्थरों के ऊपर ही हमारे डॉक्टर सदाओ का घर बिल्ट था, बना हुआ था. राइट स्टूडेंट्स, एंड ऑफ कोर्स एज अ स्मॉल बॉय ऑफ कोर्स ही हैड प्लेड देयर. ओके, एंड खासियत क्या थी? यहाँ पे सी शोर के पास पाइन के ट्रीज थे. ओके, द ट्रीज ऑफ पाइन्स, पाइन ट्री कैसे होते हैं? दे आर वेरी लार्ज, वेरी टॉल, बहुत लंबे लंबे होते हैं, दे आर वेरी टॉल, ठीक है, पाइन ट्रीज जो होते हैं दे आर वेरी टॉल यूजुअली, ठीक है. अच्छा, एंड एज अ बॉय, ठीक है, एज अ बॉय जब हमारे सदाओ होकी छोटे थे तो ही यूज्ड टू क्लाइंब ऑन दीज ट्रीज बेयर फीट. बेयर फीट मतलब नंगे पाँव. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, नंगे पाँव वो इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ते थे. पाइन ट्रीज कौन से हैं? जस्ट थिंक, कौन सा फ्रूट है? पाइन. यस, पाइन एप्पल, ठीक है, पाइन एप्पल के जो ट्रीज होते हैं वो भी स्टूडेंट्स कोकोनट ट्री की तरह काफ़ी लंबे होते हैं. ओके, दे आर नॉट बेंट वेरी मच, ओके, बट दे आर स्ट्रेट एंड देन लिटिल बिट बेंट. राइट स्टूडेंट्स, अब हमारे सदाओ हो कि ही यूज्ड टू क्लाइंब दीज ट्रीज बेयर फीट. कैसे क्लाइंब करते थे? एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जस्ट लाइक पीपल डू इन द साउथ सीज. ठीक है, जैसे हमारे साउथ इंडिया में कोकोनट की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, तो वहाँ पे लोगों को देखा आपने कैसे चढ़ते हैं वो पाइन ट्रीज पे? एनीबडी कैन थिंक कैसे चढ़ते हैं? मशीन से नहीं चढ़ते ऊपर. हाँ, ऑफ कोर्स, यू नो दे टाई अ रोप ऑन देयर वेस्ट. ठीक है, अपनी कमर पे एक वो वेस्ट पे रस्सी बांधते हैं, रोप बांधते हैं, और उस रोप को इस पेड़ के साथ अटैच करते हैं, बांधते हैं अपने आप को पेड़ के साथ बांध के, देन स्टेप बाय स्टेप दे क्लाइंब, ओके, द ट्री. ओके, तो हमारे सदाओ होकी भी बचपन में एज अ स्मॉल बॉय ही यूज्ड टू क्लाइंब दीज पाइन ट्रीज. ओके, एंड ऑफ कोर्स विद हिज father. In this chapter, students,
Okay, Sadao Hoki's father plays a major role in developing his son's character. ठीक है, of course एक child के जीवन में students in a child life, his or her parents plays the major role to develop a child's thinking, attitude, okay, knowledge about his or her culture and all these things. ठीक है, तो हमारे डॉक्टर सदाओ होकी के फादर जो थे उनका एक बहुत बड़ा रोल है हमारे इस चैप्टर में. ठीक है स्टूडेंट्स, अब उनके जो फादर थे वो हमेशा सदाओ के साथ रहा करते थे और वो of course when Sadao used to climb he used to guide him. Okay, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, he of course his father had taken him often to the islands. ठीक है, तो उनके जो फादर थे उनको आइलैंड्स पर लेके जाते थे and of course okay he used to say to the little brave boy. सदाओ को देखिए बचपन में ये क्वालिटी दे दी गई है that he was brave. ठीक है, बचपन में ही उनके फादर उन्हें ब्रेव कहा करते थे. तो उनके फादर उन्हें क्या समझाते थे, दैट दोज आइलैंड्स यॉन्डर. ठीक है, यॉन्डर, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ यॉन्डर माय डियर स्टूडेंट्स, दिस मीन्स इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, दोज आइलैंड्स यॉन्डर. ठीक है, ये जो आपके सामने ठीक है आइलैंड्स हैं ये क्या हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ जापान्स फ्यूचर. ओके, यानी कि यहाँ से ये जो आइलैंड्स आपको दिखते हैं यहाँ से जापान के फ्यूचर की नींव रखी जाती है. स्टेपिंग स्टोन क्या होता है, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना. ठीक है, तो अब सदाओ के फादर ये क्यों कहते थे स्टूडेंट्स, दैट इन आइलैंड से ही जो आपके सामने हैं जापान के फ्यूचर की शुरुआत होती है. क्यों कहते थे वो, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स देखिए जब कोई एनिमी, जब वॉर टाइम है, ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत है, एयर से आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, ग्राउंड से स्ट्राइक नहीं कर सकते, क्या सोचते हैं स्ट्राइकिंग के लिए, ऑफ कोर्स थ्रू द सी, समुद्र के रास्ते अटैक करेंगे, है ना. और अगर ऑफ कोर्स पहले ज़माने में क्या होता था, हमें अब्रॉड जाना होता था पढ़ाई के लिए, देयर वर नो एरोप्लेन्स. ओके, एयरवेज वर नॉट पॉसिबल, सो ओनली द सी वेज वर पॉसिबल. ठीक है, तो वो सी वेज हमें कहाँ से मिलते हैं, सी से, समुद्र से, ओशन से. ठीक है, तो ऑफ कोर्स सदाओ के फादर बचपन में ही उन्हें बता चुके थे दैट इफ जापान वांट्स डेवलपमेंट he has to move further from these islands. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अगर अपने आप को एनिमी से बचाना है तब भी इन आइलैंड्स की प्रॉपरली देखभाल करनी होंगी बिकॉज दे वर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ जापान्स फ्यूचर. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? Of course, the para is absolutely clear to everyone. Very nice. Now let us move further. Okay, further it is said, where shall we step from them? Sadao had asked seriously. एंड जब बचपन में उनके फादर ने ये बताया था दैट दीज वर द स्टेपिंग स्टोन्स, तो सदाओ ने एकदम सीरियस होके क्या पूछा था स्टूडेंट्स, दैट फ्रॉम वेयर वी विल स्टेप फ्रॉम हेयर, कि फादर अगर हम यहाँ पहुँच गए तो यहाँ से आगे हम कहाँ जाएंगे, वेयर वी विल गो फर्दर. एंड देखिए व्हाट अ ब्यूटिफुल आंसर हिज फादर हैड गिवन, हु नोज, who can limit our future, it depends on what we make it. बात समझ आई? This is a very very deep thought students. उनके फादर ने उनसे कहा, okay, who knows, किसे पता है कि हम यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे, क्योंकि students future has no limit. Okay, is that clear? Future has no limit. कोई सीमा नहीं होती है फ्यूचर की. ठीक है, फ्यूचर की कोई भी लिमिट नहीं होती है डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, अब सपोज़ आपका सपना है आईएएस बनने का, फ़िलहाल आप कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो क्या ये निश्चित हो जाता है कि आप ज़िंदगी में कभी आईएएस नहीं बन पाएंगे, आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएंगे? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. नोबडी कैन लिमिट आवर फ्यूचर, as nobody knows what is inside the future. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. एंड ऑफ कोर्स देखिए सदाओ के फादर ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही है डियर स्टूडेंट्स.
ओके उन्होंने एक बहुत प्यारी बात हम सबसे कही है. इनफैक्ट पर्लस बक, ओके दीज आर हर वर्ड्स. ओके द ऑथरेस, जो ऑथरेस हैं उन्होंने कितनी सुंदर खूबसूरत बात कही है थ्रू हर कैरेक्टर सदाउस फादर. ठीक है, द थिंग इज yes students, okay it depends on what we make it. ठीक है, हमारा फ्यूचर, ठीक है हमारा फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है? नेबर पे, दोस्त पे, पेरेंट्स पे, टीचर्स पे, स्कूल पे? ऑफ कोर्स नो, यू आर द मास्टर्स ऑफ योर ओन लाइफ. ये सब आपके सपोर्टिंग सिस्टम है. स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल, पेरेंट्स, टीचर्स, ऑल आर द सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ योर्स. ओके फाइनली आप ही को डिसाइड करना है डियर स्टूडेंट्स कि आप अपने फ्यूचर को क्या बनाना चाहते हैं. ओके आप अपने फ्यूचर में शाइन करना चाहते हैं विद सक्सेस, और यू जस्ट वांट टू लिव योर लाइफ. इट कंप्लीटली एंड टोटली डिपेंड्स ऑन यू माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो वही बात हमारे सदाओ होकी के फादर ने सदाओ को कब समझाई थी? ये बात बड़े होने के बाद नहीं समझाई है, बचपन में ही. ठीक है, when he was a child, तभी उन्हें समझा दिया गया था. Is that clear? Okay, now let us move further in our chapter. Further, the chapter says, Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. Right? His father who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. Sadao knew that his education was his father's chief concern. For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. He had come back at 30, and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist, because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops. Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. And for this possibility, Sadao was being kept in Japan. Okay, students, right? Now, students, from the very beginning, since the childhood, Sadao has taken all these things very seriously. Okay, and of course, on the other hand, his father, okay, he never joked with him, he never played with him. Okay, so Sadao was also, since the very beginning, he was a serious child, and he took into notice whatever his father used to tell him. Right, students? Okay, now students, Sadao ye bhi jante the that his education was the chief concern of his father. Okay, and for this education at the age of 22, dhyan rakhenge, at the age of 22 he was sent to America. Yes, America bheja gaya tha unhe further studies ke liye, and of course he returned back when he was 30. Okay, तो टोटल कितने साल रहे वो अमेरिका में? 8 years. Is that clear? तो हमारे सदाओ 8 years बाद जब जापान वापस आते हैं तो उन्होंने अमेरिका में क्या स्टडी की? ही स्टडीड अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन. ठीक है, बात समझ आ गई? ओके, ही स्टडीड अबाउट सर्जरी एंड मेडिसिन, एंड 8 years बाद जब वो आए तो क्या बन गए थे? ही बिकेम अ सर्जन. लेकिन वो सिर्फ सर्जन ही नहीं थे, ही वॉज ऑल्सो ए साइंटिस्ट. इज दैट क्लियर? अब देखिए
किसी कंट्री का अगर कोई सिटीज़न सर्जन भी हो और साइंटिस्ट भी हो तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, डेफिनेटली बहुत बढ़ जाती है स्टूडेंट्स। ओके, तो हमारे सडाओ होकी जब 8 इयर्स बाद आए अमेरिका से, ही वॉज अ ग्रेट सर्जन, फेमस सर्जन एंड ऑफ कोर्स अ फेमस साइंटिस्ट। अनफॉर्चुनेटली हिज फादर डाइड, ठीक है, उनके फादर की डेथ हो गई थी, लेकिन डेथ से पहले वो अपने बेटे को सर्जन और साइंटिस्ट बनता हुआ देख चुके थे स्टूडेंट्स। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर है सबको? ओके स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए इसी पैराग्राफ में क्या मेंशन किया गया है, दैट जो जनरल थे, जनरल कहाँ के हुए, सडाओ होकी किस कंट्री के हैं, जापान के, तो जनरल कहाँ के हुए, जापानीज आर्मी के। ठीक है, टाइम कौन सा चल रहा है, वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो जापानीज आर्मी के जो जनरल थे, ठीक है, जनरल थे, उनको सडाओ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। रीज़न क्या था, मेडिकली ज़रूरत थी। रीज़न था कि हमारे जो जनरल थे जापानीज़ आर्मी के, वो खुद भी काफ़ी ओल्ड एज थे एंड काफ़ी बीमार थे। दैट वॉज द रीज़न हमारे सडाओ को ट्रूप्स के साथ, ट्रूप क्या होता है स्टूडेंट्स, हाँ, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज ट्रूप। ठीक है, तो सोल्जर्स के साथ बॉर्डर्स पे भी नहीं भेजा गया था सडाओ को। रीज़न था कि जनरल के ऑपरेशन या सर्जरी के लिए सडाओ की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना चैप्टर? नाउ वी विल मूव फर्दर ऑफ कोर्स। ओके, now in this paragraph, in the third paragraph, okay, clouds were rising। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए, अब अभी तक आपको क्या बताया गया है, द बैकग्राउंड। ठीक है, एक बैकग्राउंड बताया गया है, ठीक है, सडाओ का, सडाओ के फादर का, एंड प्रेजेंटली सडाओ का प्रोफेशन क्या है। ठीक है, आप सबको क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए नाउ लेट अस मूव फर्दर इन आवर स्टोरी, राइट। Okay, now in this chapter students, okay, the clouds were rising from the ocean now। ठीक है, हमारे सडाओ होकी का घर है, clouds were rising। clouds कैसे rising होंगे ओशन से, कौन बताएगा, कौन बताएगा clouds कैसे rise होंगे students? Since the third or fourth classes you have been reading the chapter of evaporation। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? ऑफ कोर्स पढ़ चुके हैं, आप सब मास्टर्स हैं इवेपोरेशन प्रोसेस के, जो रेन सर्कल है। ठीक है, इवेपोरेट होता है पानी, इट गोज टू द क्लाउड, कंडेंसेशन होती है, इट कम बैक्स एज अ रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखिए इवेपोरेशन, ड्यू टू इवेपोरेशन, ठीक है, जो सी थी इन द इवनिंग टाइम इट स्टार्टेड बिगनिंग टू बी कूल। तो हल्का हल्का जो इवेपोरेशन अभी नहीं हो रहा है, इवेपोरेशन हो चुका है, बट द मिस्ट, मिस्ट क्या होती है, मिस्ट क्या होती है, एक तो फॉग होता है, कोहरा जब ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मिस्ट क्या होता है, जब धीरे धीरे मॉइस्चर ऊपर एनवायरनमेंट में, हमारे बायोस्फीयर में मिक्स होने के लिए ऊपर आता है। ठीक है, तो अब क्या हो चुका था आज के दिन, ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे स्टोरी अब प्रेजेंट फॉर्म में आ चुकी है कि आज क्या हुआ। ठीक है, सडाओ के घर पे। ठीक है, सडाओ का घर आप सबको पता है सी शोर के पास है। तो धीरे धीरे अब रात हो चुकी थी। ठीक है, और रात के धुंधले कोहरे में आसपास का जो सडाओ का जो घर है वो कंप्लीटली फॉग की चादर से ढकना शुरू हो चुका था। ठीक है, इट इज़ ऑल मिस्ट। ठीक है, ये पूरा मिस्ट का एक ब्लैंकेट बन चुका था। ठीक है, और यहाँ पे सडाओ होकी का ऑफ कोर्स घर था। ठीक है, राइट। तो मिस्ट का एक ब्लैंकेट चारों तरफ बनना स्टार्ट हो चुका था। एंड स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स, ठीक है, सडाओ वहाँ पे अपनी बालकनी में, अपने वरांदा में खड़े हुए थे। एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल दीज
थिंग्स, ओके। एंड ऑफ कोर्स, ठीक है, वो सोच रहे थे खड़े खड़े यूं ही कि अब बस कुछ ही देर बाद मेरा पूरा घर इस मिस्ट से कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड देखिए अब आता है दूसरा कैरेक्टर। एंड ऑफ कोर्स अब जब ये पूरा घर मेरा मिस्ट से कवर हो जाएगा, आई वुड गो इनसाइड। अंदर कौन है भाई? यस, हैना, ठीक है। हैना कौन है? हिज वाइफ, ठीक है। सदाओ होकी की वाइफ हैं एंड उनके 2 चिल्ड्रन भी हैं, ठीक है। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ठीक है। सदाओ सोच रहे हैं कि एक बार जब मिस्ट इसे कवर कर लेगी मेरे घर को पूरा, तो मैं अंदर चला जाऊंगा अपने बच्चों और अपनी वाइफ के पास। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अभी सदाओ सोच ही रहे थे कि मैं अंदर जाऊंगा, बट एट दैट वेरी मोमेंट, ठीक है, उसी वक्त बालकनी का दरवाज़ा खुलता है एंड ऑफ कोर्स एक डार्क ब्लू वुलन हैरोई, ओके, हैरोई ओवर हर किमोनो और हैरोई स्टूडेंट्स दोनों ही जो हैं ये ड्रेसेस के नाम हैं, ठीक है। जापान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जापान इज़ द बेसिक बैकग्राउंड, जापान कंट्री, ओके। तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की क्लोथिंग, फूडिंग सब वहीं का ही है, ठीक है। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में जो ड्रेसेस होती हैं वो क्या है? साड़ी, कुर्ता पैजामा, धोती, है ना, एंड ऑल दीज थिंग्स, लहंगा, चुनरी एंड ऑल दैट, ठीक है। हर ड्रेसेस के अलग अलग नाम हैं। तो इसी तरह अब अचानक उसी वक्त बालकनी का दरवाज़ा खुलता है एंड ऑफ कोर्स अपनी ब्लू ड्रेस पहने हुए, वुलन ड्रेस पहने हुए हैना, कौन है? उनकी वाइफ, यस, उनकी वाइफ वहाँ पे एंटर होती हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स वो बिल्कुल उनके साथ आकर खड़ी हो जाती हैं। वो कुछ कहती नहीं हैं उनसे, शी सिंपली स्माइल्ड, ठीक है, हल्का सा वो मुस्कुराती हैं एंड वहीं पर खड़ी हो जाती हैं। अब देखिए हमारे डॉक्टर सदाओ होकी को क्या याद आ रहा है? दैट ही हैड मेट हैना। वो हैना से कहाँ मिले थे स्टूडेंट्स? अमेरिका में, हाँ जी, यस, वो हैना से अमेरिका में मिले थे स्टूडेंट्स, ओके। समझ आ गई बात? अब देखिए, लेकिन आगे आपके उस पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है? जस्ट रीड इट थॉरली। ही हैड मेट हैना इन अमेरिका बट he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese, ठीक है। बात समझ आई? हैना से वो मिले तो अमेरिका में थे, लेकिन उन्होंने प्यार नहीं किया था इंस्टेंटली उनसे। क्यों? उन्होंने इंतज़ार किया था ये जानने के लिए कि क्या हैना जापानीज़ हैं। क्या रीज़न था? क्या रीज़न था? आगे दिया हुआ है रीज़न, I am reading it to you. The reason was his father would never have received her unless she had been pure in her race. क्योंकि सदाओ के फादर हैना को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो जापानीज़ नहीं होती। Because Sadao's father was very particular about his culture, tradition, country and of course Sadao, ठीक है। बात समझ आई? बट आजकल की जनरेशन हमारी कैसी है? सोचिए, हम अपने पेरेंट्स की भावनाओं की कदर नहीं करते। पेरेंट्स की की तरफ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसे नहीं समझते। वी सिंपली वॉन्ट टू कैरी ऑन आवर ओन लाइफ। बस हमें अपनी लाइफ चाहिए और हमारी लाइफ में हम अपनी मनपसंद की चीज़ें और काम बस करते ही चले जाते हैं, विच इज़ नॉट राइट, ठीक है। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखें कि इफ़ पेरेंट्स आर टेलिंग यू समथिंग, गाइडिंग यू समथिंग, यू हैव to be careful to follow their guidelines, okay, because they are your lifeline students. कभी उन्हें betray मत कीजिए, कभी उनके किसी भी ऑर्डर को नकारिए मत, ठीक है। Always respect your parents. सदाओ देखिए सर्जन बन चुके हैं, मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं। आजकल की जनरेशन को आप भेजो कहीं पढ़ाई करने के लिए तो वो करते हैं सच्चे दिल से?
करते हैं, और जो करते हैं स्टूडेंट्स वही कामयाब होते हैं, है ना। और जो नहीं करते हैं, पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं, सिंपली बस पैसे खर्च करते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, तो क्या उन्हें सक्सेस मिलेगी? द आंसर यू ऑल नो डियर स्टूडेंट्स, है ना, नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमें हमेशा वी शुड ऑलवेज बी ओबीडियंट टू आवर पेरेंट्स, जस्ट लाइक सदाओ होकी। Is that clear? Okay, is that clear, my dear students? Okay, very nice students. Now I definitely hope that you all must have understood the chapter this much. Okay, and in tomorrow's class, be ready with your textbooks open, and of course with your practice notebooks of English. Am I clear, dear students? Okay, till the time, okay, be safe and sound at your places. Have a wonderful day ahead. God bless you all, dear students.